Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbilan. O Allah, we ask for beneficial knowledge, goodly provision, and acceptable deeds. I, Dr. Shagufta Niazi, SR Neonatology, Children's Hospital, Lahore, welcome all respected chairpersons, senior faculty, UNICEF personnel, postgraduate residents, fellows, and our dearest sister to our breakout session on endocrine and growth issues and its screening from the prestigious platform of UNICEF, PPA Punjab, PPA Neonatology Group, and University of Child Health Sciences. What appears normal in a neonate may hide critical endocrine signals. So today's session focuses on recognizing them early and its screening, as it requires timely action. Let's proceed through this session. It is my privilege to invite our esteemed chairpersons to please be seated and lead us through this session. Professor Amin Jan, a highly experienced pediatrician with the decades of clinical experience. Additionally, he is the chairperson of Research Division of PPA, where he leads and collaborates with WHO, UNICEF, and other international organizations for data sharing and capacity building. His own research includes work on childhood immunization, infectious diseases, and participated as co-author in many peer-reviewed international journals. Sir, please. Now it's my pleasure to invite Professor Akil Khan Khattak, who is currently professor at Department of Pediatrics in Khyber Girls Medical College, Hayatabad Medical Complex. He has been deeply involved in teaching and mentoring postgraduate resident, and he is the chairperson research committee PPA KPK. We are honored to have him. Thank you very much, sir. Now, as we move on to our session, I also invite Major General Salman. He needs no introduction. He is a well-known person. He is a mentor and teacher and deeply involved in the academic activities. Sir, please. Dr. Kuratalan, who is a health specialist and team leader, UNICEF Punjab. Her professional career encompasses program planning and implementation in public and private sector. She not only worked in the developmental stages but also in the emergency situations. Now I request her for welcome remarks and integration of the session. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Dr. Shagufta. And with the permission of the chair, I would try to be bilingual so that I am clear to all my participants. My main responsibility is just to, introduce you about this breakout session. And this session is being conducted with UNICEF support to the university. So what is UNICEF? I will just tell you briefly about that. We are very proud and very honored that we are technically collaborating with you. Professor Farah, thank you so much for that. Today's session is about the endocrine and growth issues of newborn and screening. So how we are doing about that? मैं आप लोगों से कुछ खास ऐसी बातें करना चाहूँगी विच आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेंबर दोज पॉइंट्स आई एम नॉट गोइंग टू डू द डिटेल्स बट जस्ट रिमेंबर दैट वी आर ऑल वर्किंग हेयर वी आर ऑल न्यूनेटोलॉजिस्ट पीडियटिशियंस और हम सब काम कर रहे हैं न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी को कम करने के लिए एंड यू ऑल नो व्हाट न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी इज़ हाउएवर पंजाब की न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी इस वक्त 33 है और पूरे पाकिस्तान की इस वक्त 39 है और इसका ये मतलब है कि हम अभी बहुत पीछे हैं दुनिया से वाई बिकॉज हमारा जो ग्लोबल टारगेट है दैट इज़ 12 एंड वी आर एट 33 वी आर गुड एंड वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे और हम सिर्फ इस वक्त दुनिया में सूडान से पीछे हैं बाकी हम सब मुल्क हमसे आगे हैं ग्लोबल टारगेट को अगर हम इसी स्पीड से अचीव करना चाहेंगे तो हम शायद 50 ईयर्स तक भी नहीं कर सकेंगे ये पॉइंट आपने याद रखना है कि वी आर ऑल वर्किंग टू रिड्यूस दिस नंबर विच हाउ एवर इज़ वेरी हाई फॉर पाकिस्तान उस न्यू बॉर्न मॉर्टेलिटी के अंदर जो मेजर चंक है दैट इज़ अनडायग्नोज कंजेनिटल और एंडोक्राइन कंडीशंस जो कि मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को बढ़ाती हैं
So what is our role? That early detection, it enables timely interventions. और इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं वो आपको मुझसे ज़्यादा पता है. Hypothyroidism congenital, gestational diabetes in mother can cause that, and congenital adrenal hyperplasia, और इसके हमने मॉर्निंग में बहुत अच्छे लेक्चर्स अटेंड किए हैं. Simple, cost-effective and screening methods are available. We have to remember that. And early intervention is important. उससे क्या होगा? We will prevent the disability and we will improve the quality of life. Or what is required? Awareness, infrastructure, पॉलिसी सपोर्ट. जैसे आज सुबह में हमारे मिनिस्टर साहब आए हुए थे, उन लोगों की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है. एंड कोलैबोरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन लाइक चिल्ड्रन हॉस्पिटल यूनिवर्सिटीज कोलैबोरेटिंग विद पार्टनर्स लाइक यूनिसेफ. सो व्हाट इज यूनिसेफ? यूनिसेफ इज नॉट एन एनजीओ. ये बात आपको मैं पॉइंट बताना चाहती हूँ. वी आर वन ऑफ द यूएन ऑर्गेनाइजेशंस. और हमारा क्या मैंडेट है? वी आर वर्किंग विद चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड women, स्पेशली फॉर women. We have many sections in UNICEF. Health है, nutrition है, education, child protection, and me and my colleague Dr. Saira is today representing the health section of UNICEF. हमारी की प्रायोरिटीज यूनिसेफ में है maternal, newborn, child, adolescent health, और उसमें भी newborn हमारा फोकस है. And what have we done over the years? कैंगरू मदर केयर का नाम आप लोगों ने सुना होगा. वो यूनिसेफ ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई थी. और पाकिस्तान में जो यूनिसेफ में भी जो पाकिस्तान में लेकर आए थे, वी आर लकी कि वो साहब इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं. डॉक्टर ताहिर मंजूर, आप ये इंटरवेंशन उस वक्त आप यूनिसेफ में थे और आप पाकिस्तान में लेकर आए थे, एंड वी ऑल आर थैंकफुल टू यू. होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर एक और इनिशिएटिव है जो यूनिसेफ ने इंट्रोड्यूस कराया और वो अब स्केल अप हो रहा है. हेल्पिंग बेबीज ब्रीथ, which is focusing on newborn resuscitation. That initiative was also introduced by UNICEF. Just to tell you what UNICEF is doing. Newborn screening की हम बात करते हैं तो is a primary public health program. Screening करेंगे for detection of disorders in newborns before the onset of symptoms. Before the onset of symptom is really important. आज के ब्रेकआउट सेशन का ये लेआउट है कि अब मैंने जब 5 मिनट की बात कर लूँगी तो फिर डॉक्टर निगहत जो हैं वो मेजर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस की बात करेंगी जो कि न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने में अहम किरदार अदा करती हैं. एंड यू आर ऑल आर वर्किंग इन दैट सेटअप. बहुत सी चीज़ें आपको पता होंगी, बहुत से मेजर पॉइंट्स आपके लिए शायद नए होंगे. उसके बाद डॉक्टर सायरा खान आपको बताएंगी कि यूनिसेफ की तरफ से ऐसी क्या इंटरवेंशंस हो रही हैं, और वो भी एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन होगी. वी विल बी अवेलेबल लेटर ऑन अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए होंगी. डॉक्टर नुदरत विल टेल यू अबाउट द एंटीनेटल एस्पेक्ट. स्क्रीनिंग जब हमने करनी है तो एंटीनेटल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि स्क्रीनिंग में हम डिटेक्ट कर सकें ऑल दोज कंडीशंस जिनका हमने जिक्र किया. प्रोफेसर फरा विल बी टेलिंग यू अबाउट द पोस्ट नेटल एस्पेक्ट. एंड उसके बाद एक सिनेरियो बेस्ड क्विज होगा. वो सब डिपेंड करेगा आपकी कितनी अटेंशन है इन सारी प्रेजेंटेशंस को, एंड देन यू विल बी एबल टू, आई एम श्योर, डू द क्विज. सो आई थैंक यू ऑल. आई विश यू अ हैप्पी लिसनिंग. थैंक यू सो मच. Thank you very much, Dr. Kurat, for briefing us so well. Now we are moving on to our next speaker, Dr. Nigat Wasim, who will provide quick overview of major public health interventions to improve newborn mortality and morbidity. She is consultant gynecologist, public health expert with the decades of experience in MNCH and working closely with WHO, UNICEF, UNFPA, and Pakistan Initiative for Mother and Newborn. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Shagufta, for the introduction and having me here. With the permission of chairperson and all worthy guests and faculty and all my dear audience, good afternoon. तो सबसे पहली बात तो ये मैं स्टार्ट करूँगी कि my topic is public health interventions to improve newborn morbidity and mortality. तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हम बात करेंगे. पहली चीज़ तो ये कि न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी एंड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस वाई, दोनों चीज़ें क्यों. तो फर्स्ट चीज़ जैसे कि डॉक्टर कुरतुलैन ने हाईलाइट किया, हमारा जो ग्लोबल एस्पेक्ट को हम देखें तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इज़ अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड, स्पेशली हमारे साउथ एशिया में जहाँ पे हम रह रहे हैं. और फिर जब हम अपने नेशनल डाटा को देखते हैं तो वो हाईलाइट करता है न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी एंड हाई. It remains a crisis with millions dying in the first month
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये हाई मोर्टेलिटी जो है ये सबसे ज़्यादा प्रिवेंटेबल कॉजेज़ की वजह से है। तो जब हम बात करते हैं प्रिवेंटेबल कॉजेज़ जो कि प्री मैच्योरिटी है, इन्फेक्शंस हैं और बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, तो फिर हमारा पब्लिक हेल्थ की और नियोनेटल मोर्टेलिटी की बात करना, इंटीग्रेट करना जो है ये एक्सप्लेन हो जाता है, विच इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब हम में से most of the people sitting here are working in the tertiary care setups, and we are not very much aware of the prevention and public health aspect of the diseases and mortality and morbidity. So I'll be giving a very brief review okay, what is public health. Public health is basically a preventive measure. It prevents diseases, it is promoting health and prolonging life, and all these are being done through very organized community efforts. सो कम्युनिटी रोल को और कम्युनिटी की एफर्ट्स को हम लोग ओवरलुक नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो उसमें जब हेल्थ प्रमोशन है उसमें कम्युनिटी अवेयरनेस इन्वॉल्व है, एजुकेशन इन्वॉल्व है एंड बिहेवियर चेंज इन्वॉल्व है। देन डिजीज़ प्रिवेंशन की बात हो तो उसमें वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग जो कि इधर हमारी इस डिस्कशन का मेन एजेंडा है उसमें इम्पॉर्टेंस है। फिर हेल्थ केयर पॉलिसीज़ हैं जिनका डॉक्टर कुरतुलैन ने डिस्कस किया, एक बताया कि हमें हेल्थ पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन करना और वो उनको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स और डे टू डे हेल्थ इश्यूज़ जो कि एनवायरमेंट और पोल्यूशन, वाटर और एयर पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिनको हम आजकल फेस कर रहे हैं। इन सब के साथ हम लोग किस तरह से कर सकते हैं एक प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है कि इट प्रोवाइड्स फर्स्ट लेवल पर्सन सेंटर्ड केयर फॉर इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़। तो हम लोगों को हर एक को इंडिविजुअली ये सोचना है कि वाइल सिटिंग इन द टर्शियरी केयर हॉस्पिटल गेटिंग ट्रेनिंग्स एंड वर्किंग इन टर्शियरी केयर एनवायरनमेंट, आर वी द फर्स्ट लेवल persons टू बी contacted? नो, हमने देखना है कि हम किसी भी स्टेज में अपने करियर के जब जाके हम फर्स्ट लेवल फैसिलिटीज़ पे जाके काम करेंगे तो हमें अपने माइंड में क्या चीज़ें रखनी है और हमने प्रिवेंटिव हेल्थ को लेके किस तरह चलना है जिसमें सिर्फ पर्सन नहीं उनकी फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ भी इन्वॉल्व होंगी। और ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, it focuses on comprehensive, continuous, and coordinated care, not only therapeutic effect of curative medicine, for comprehensive, continuous, which includes prevention, primordial prevention, primary prevention, and so on. And it addresses the common health issues, promotes health, and prevents diseases. प्राइमरी हेल्थ केयर के रोल्स भी वही हैं, स्क्रीनिंग, डिटेक्शन, initial management, referral, then education and counseling in the community and families, and then not to be ignored, monitoring and follow up. पब्लिक हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ केयर जो है दे आर वेरी क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंशन, disease prevention, health promotion, referral and coordination, and data sharing and community engagement. इनमें मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी कि डेटा शेयरिंग इज़ द बेसिक की एलिमेंट जिस पे बेस करती है हमारी पॉलिसी मेकिंग्स और जब तक हम अपने डेटा एक्यूरेसी, डेटा मेंटेन करना, एंटर करना उस पे बात नहीं करेंगे तो, और आई डोंट नो आप लोगों को इसका आइडिया है कि नहीं, हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप्स और प्राइमरी वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें डेटा मेंटेनेंस हमारे टर्शियरी केयर से भी बेहतर है। हमारा EMR सिस्टम एंड DHIS जो है वो डेटा जो हमें दे रहे हैं उनकी बेसिस पे ही हेल्थ डिपार्टमेंट और फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फर्दर पॉलिसीज डिफाइन करते हैं। और जब पब्लिक हेल्थ और हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर को इंटरकनेक्ट कर देते हैं, इनके साथ मिल के काम करते हैं डिजीज़ प्रिवेंशन में, तो अल्टीमेट बेनिफिट इज़ द इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स, इंक्रीज्ड एक्सेस एंड एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी हमारा पंजाब में जो हेल्थ सिस्टम है जिसमें हम लोग मोस्टली अनअवेयर हैं। जब आप लोग ग्रेजुएशंस के बाद फील्ड में निकलते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे पास कम्युनिटी लेवल पे वर्क फोर्स है, आउटरीच टीम्स हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, मोबिलाइजर्स हैं, हेल्थ एजुकेशन के लोग हैं और स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं जो कि कम्युनिटीज़ में डोर स्टेप पे जाके काम कर रहे हैं। उनमें हमारी वर्क फोर्स में लेडी हेल्थ वर्कर्स, उनके साथ एसोसिएटेड सुपरवाइजर्स
और अब न्यू केडर चीफ कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर CHIs। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं मेनली। इसके अलावा MCH सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज। सेकेंडरी हेल्थ केयर सेटअप हमारे तहसील हेडक्वार्टर एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं। एंड देन इज़ द टर्शरी केयर हेल्थ फैसिलिटीज़ टीचिंग हॉस्पिटल्स जहां हम बैठे हुए हैं। तो आप देखें दिस इज़ लाइक अ पिरामिड के जहाँ पे बैठ के आप टॉप पे काम कर रहे हैं और हम लोग बॉटम वाले जो 3 लेवल्स हैं उनसे अवेयर नहीं होते हैं। तो हेल्थ कवरेज जो पंजाब में है अक्रॉस द 36 डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें थाउजेंड्स में हैं जो लेडी हेल्थ वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स काम कर रहे हैं। हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो रफली 2461 है टू द जो आज का आजकल का लेटेस्ट डाटा है, लेकिन ये फिगर थोड़ा सा वेरी कर सकता है विद टाइम। और ये तकरीबन 10,000 टू 25,000 पीपल को सर्व कर रही है हर BHU। उसके बाद रूरल हेल्थ सेंटर 293 है एंड दे केटर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 टू 1 लाख पीपल। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स इस वक्त 88 हैं जो कि 2 लाख से 5 लाख पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। और DHQ हॉस्पिटल अप्रॉक्सीमेटली 1 टू 2 मिलियन पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। और फिर हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं जिनका नंबर वेरिएबल है जिस पॉपुलेशन को वो केटर कर रहे हैं। और हमारे पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स जो है आप सबको पता है कि कभी किसी पेशेंट को सर्विसेज रिफ्यूज़ नहीं करते। अब आ जाते हैं हम इंटरवेंशंस जो कि पब्लिक हेल्थ या प्राइमरी लेवल की जो इंटरवेंशंस जो कि रिड्यूस कर सकती हैं एंड दे कैन प्ले द रोल इन द रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। दे आर इन द आप जब भी न्यूनेटल मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी की बात करें तो इंटरवेंशन स्टार्ट होगी फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन बिफोर दैट प्राइमोर्डियल फ्रॉम द प्री कंसेप्शन लेवल। ये अगले सेशंस में डिस्कस होगा। फिर ड्यूरिंग डिलीवरी इंट्रापार्टम पीरियड में क्या इंटरवेंशंस हैं एंड देन पोस्ट नेटल। और इन सब को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू वेरी स्ट्रेंथन्ड हेल्थ सिस्टम और जिसको फर्दर स्ट्रेंथन करने की भी ज़रूरत है एंड कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस। एंटीनेटल इंटरवेंशंस की जब हम बात करें तो ये मेरा ख्याल है कि हम सब इनसे अवेयर हैं कि अर्ली रजिस्ट्रेशन, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप, मैटरनल न्यूट्रिशन विद सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड फोलिक एसिड, immunization, screening and management of common diseases and infections, and birth preparedness and complication readiness. These are all interventions which are carried out during the antenatal period to enable the women to have healthy baby. Then intrapartum interventions are very important. Skilled birth attendance is very important. अभी भी हमारी बहुत सारी births जो है वो unskilled लोगों से हो रही है। कवरेज हमारी बहुत इम्प्रूव की है विद इंटरवेंशंस। क्लीन एंड सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस, यूज़ ऑफ लेबर केयर गाइड जिसकी वजह से हम टाइमली जो है रेफरल और ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं एंड प्रिवेंशन ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया। अब इंट्रापार्टम और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर की बात करें तो थर्मल रेगुलेशन है जो कि आप लोग जो काम कर रहे हैं लेबर रूम ऑब्स्टेट्रिकल थिएटर्स में they will be very aware of के immediate drying and skin to skin contact, फिर early initiation of breastfeeding, clean cord care, eye care and vitamin K administration। इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग है, इसमें 3 E's आप अपना मैसेज ये लेके जाएं यहाँ से कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 0 to 6 months एंड एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अप टू 2 years। अब अर्ली इनिशिएशन के बेनिफिट्स क्या हैं फॉर द नियोनेट ओनली। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ नियोनेटल मेंशन कर रही हूँ। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, it acts like first vaccine of the neonate, having immunoglobulins, improves bonding with the mother, optimal nutrition and ultimately it reduces the neonatal mortality। Then care of low birth weight babies and preterm babies, इसमें exclusive breastfeeding, prevention of hypothermia, infections, kangaroo mother care and timely referral। kangaroo mother care मैं देख रही थी कि जब जिक्र हुआ तो most of the audience were very much familiar, is a simple evidence based intervention for low birth weight and preterm newborns। It involves continuous skin to skin contact, exclusive breastfeeding and leading to early discharge with follow up।
प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस के लिए क्लीन डिलीवरी, क्लीन कॉर्ड केयर, अर्ली रिकग्निशन ऑफ डेंजर साइंस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस. Then the postnatal interventions. Postnatal visits for newborn and mother are very crucial because discharge हमारे हॉस्पिटल से अर्ली हो जाता है. उसके बाद जब जाके होम बेस्ड केयर जो है फॉर मदर एंड न्यू बॉर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर काउंसलिंग ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, न्यू बॉर्न केयर एंड काउंसलिंग ऑन फैमिली प्लानिंग, immunization of the baby, monitoring the growth and development of the baby. अब कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस की जब बात होती है तो उसमें हमारी कम्युनिटीज़ में काम करने वाली वर्कफोर्स, फिर उसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेल्थ एजुकेशन का, जिसमें कम्युनिटी अवेयरनेस सेशंस हैं, हमारा मैस मीडिया का रोल है और हमारे हेल्थ एजुकेटर्स का रोल है. फिर फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो है, अब इस पे हर डिसीजन मेकिंग में हमारे पास जो मेल डोमिनेंस और वो उसको केटर करने के लिए फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट इन प्रिवेंशन, किसी भी किस्म की डिजीज़ और किसी भी हमारे उसके लिए इंटरवेंशंस के लिए वो बहुत ज़रूरी है. एंड होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर जिसके बारे में अभी बताया गया. अब लास्टली हमारी कोई भी इंटरवेंशंस जो है वो उस वक्त तक इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती until unless we have a strengthened health system. Strengthened health system means a functional referral system, availability of essential drugs and equipment, training of healthcare providers, newborn care units and data maintenance. And our effective referral system is from primary healthcare to secondary to tertiary. And इधर से मैं इधर क्लोज करूँगी कि हमारे रेफरल सिस्टम में 1122 और पेरीफ्री में 1034 इफ़ेक्टिवली काम कर रही हैं और हम सबको इंडिविजुअली अपने लेवल पे ये काम करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव जो है रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी जो है उस पर जा सकें. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, Dr. Nigat. What an enlightening presentation. Now I invite Dr. Saira Khan, who graduated from King Edward Medical College and University of South Wales. She is an ambassador of newborn health and critically ill neonates, and she has more than 20 years of experience in public health services. Upgrading of KMC and PSBI are on her credit. Please, Dr. Saira. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मैं एक जनरल ओवरव्यू आप लोगों को दूंगी कि यूनिसेफ जो है वो क्या क्या इंटरवेंशंस कर रहा है टू प्रमोट द न्यूबॉर्न हेल्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी एक्सप्लेनिंग द न्यूबॉर्न सर्वाइवल इंडिकेटर्स क्या हैं. जिस तरह कि डॉक्टर निगत ने मेंशन किया कि ये एंटीनेटल से स्टार्ट होनी है इंटरवेंशंस एंड देन इट गोज ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड लेटर ऑन. एवरी प्रेग्नेंट वुमन जो मेन ग्लोबल उन्होंने टारगेट सेट किए कि 90% जो है वो डिलीवरीज जो है हमें ANC4+ होना चाहिए. उसके बाद 90% of the deliveries should be with a skilled birth attendant. Every woman and newborn should have early postnatal care, ये 80% होना चाहिए. Availability of emergency obstetric care होना चाहिए. Sick newborn care units होने चाहिए 80% of the facilities में. और उसके अलावा कुछ हमारे social determinants हैं. ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी available होंगी तो हम अपनी mortalities को कम कर सकते हैं. अभी काफ़ी डिस्कशन हुई 3 मेजर कॉजेज. जस्ट टू रिमाइंड यू कि न्यूबॉर्न्स के लिए वो सिवियर इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रीमेच्योरिटी है एंड डिस्फिक्सिया है. तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए यूनिसेफ ने बहुत से ऐसे इंटरवेंशंस किए हैं विच ओवर द टाइम हैव कंट्रीब्यूटेड इन रिड्यूसिंग द न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी, जो पंजाब में 41 से 33 पे चले गए हैं. प्रीमेच्योरिटी के लिए हमने क्या किया है, एक तो आपको जैसे बताया गया कि होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है जिसमें उनको सिखाया जाता है कि वो घरों में मदर्स को ये टीच करें कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या केयर करनी है, न्यूबॉर्न्स की केयर क्या करनी है. ये इंटरवेंशन यूनिसेफ की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया और ये 15 डिस्ट्रिक्ट की जितनी LHWs, अराउंड 15,000 to 20,000 LHWs को हम अब तक ट्रेन कर चुके हैं. ट्रेनिंग्स के अलावा उनको बेसिक सप्लाईज, वेइंग स्केल और ये चीज़ें दी और इससे कम्युनिटी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है. ये कुछ पिक्चर्स, पिक्टोरियल एविडेंस भी है. ये एक सक्सेस स्टोरी एक मदर की जिसका बच्चा जो था वो होम केयर और उसकी प्रॉपर गाइडेंस से उसकी ज़िंदगी बच गई. कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो कि हम उसमें सपोर्ट करते हैं.
उसके बाद आपको जैसे बताया गया कि एक तो लेडी हेल्थ वर्कर्स है, एक नया कैडर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कम्युनिटीज़ में जिसको कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स कहा जाता है। एंड 20,000 जो है वो अब रिक्रूट कर रहा है गवर्नमेंट, और यूनिसेफ ने उनके मैनुअल को डेवलप करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये एक बहुत बड़ी कंसल्टेशन कराई गई और उसमें हमने सपोर्ट किया, और अब उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम रोल आउट भी करेंगे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंटीनेटल कवरेज, डेफिनेटली एंटीनेटल केयर अच्छी होगी तो फिर ही उसके बाद वो उनकी लाइफ सेव हो सकती है। हमने एक LHBs का पैकेज बनाया जो कि कॉम्प्रिहेंसिव 5 days का पैकेज था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें मैटरनल और न्यूबॉर्न कंपोनेंट को कवर किया गया। 450 LHBs फ्रॉम 3 districts ऑफ द साउथ पर ट्रेंड, और ये कुछ पिक्टोरल एविडेंस एंड इट हैड वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, और गवर्नमेंट अब उस पैकेज को आगे यूज कर रही है ट्रेनिंग्स के लिए। कैंगरू मदर केयर का काफ़ी जिक्र हो चुका। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 बाय यूनिसेफ। नाउ इट इज इन 29 यूनिट्स आर प्रेजेंट अक्रॉस 19 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, और अभी भी हम उसको फर्दर स्केल अप करने जा रहे हैं और जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 18,000 प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न्स हैव बीन सेव्ड थ्रू दिस इंटरवेंशन। मैनेजिंग रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, आज जैसा सुबह जिक्र किया गया कि ऑक्सीजन ब्लेंडर्स और ये एयर और ऑक्सीजन का एक बड़ा एक स्पेसिफिक मिक्सचर चाहिए होता है जो बच्चों को, खासतौर पर प्रीमेच्योर बच्चों को रेटिनोपैथी से बचाता है। इस सिलसिले में कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग हमने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक ट्रेनिंग्स करवाई ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, और अभी हमने 35 ऑक्सीजन ब्लेंडर प्रोक्योर किए जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, और आगे जिस तरह से ये डिस्कस हुआ था विल बी डिस्कसिंग इंटरनली कि हम फर्दर हेल्थ फैसिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करेंगे। देखें सेप्सिस को कैसे हम मैनेज करते हैं कम्युनिटी लेवल पे, जैसे बताया कि होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में अगेन मदर्स को ये बताया जाता है दे शुड बी डिलीवरी बाय स्किल बर्थ अटेंडेंट टू अवॉइड इन्फेक्शंस। एंड सिमिलरली LHVs जो हमारी स्किल बर्थ अटेंडेंट्स हैं उनको हमने LHV पैकेज में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल पे ट्रेन किया। रूटीन इम्यूनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने में यूनिसेफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये अक्रॉस पंजाब, अक्रॉस 36 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब हमने उनको कोल्ड चेन इक्विपमेंट दिया है, कैपेसिटी बिल्डिंग में सपोर्ट कर रहे हैं, वेयर हाउसेज बनाने में उनको सपोर्ट किया है, और डेफिनेटली जो वैक्सीनेशन रूटीन इम्यूनाइजेशन स्ट्रेंथन होगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रिवेंटेबल डिजीजेज। Possible serious bacterial infection, ये IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस WHO की गाइडलाइंस है जो 2019 में यूनिसेफ ने प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे इंट्रोड्यूस किया। इसमें डॉक्टर्स एंड LHVs को ये टीच किया जाता है हाउ टू असेस, क्लासीफाई एंड मैनेज सिक यंग इन्फेंट 0 to 59 days न्यूबॉर्न्स, और इसके बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स थे। इसमें हमने इनके साथ इनकी न्यू बॉर्न रिससिटेशन पे भी ट्रेनिंग्स को क्लब किया, और इसकी वजह से जो है दे अप्रॉक्सीमेटली 450 हेल्थ केयर फैसिलिटीज फ्रॉम 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही थी। और फिर एस्फिक्सिया इज अनदर मेजर कॉज ऑफ द न्यू बॉर्न मॉर्टेलिटी, और द फर्स्ट जो 1 minute होता है ऑल ऑफ अस नो इज द गोल्डन मिनट जिसमें मेजर इंटरवेंशंस होनी चाहिए। इसके लिए 2013 के अंदर हेल्पिंग बेबीज ब्रीथ यूनिसेफ की सपोर्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, TOTs कराई गई। तो 2019 में दोबारा से गवर्नमेंट ने भी और हेल्थ फैसिलिटीज़ की तरफ से फीडबैक आया और हमने इस पर ट्रेनिंग्स कराई। 1000 to 1500 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को इस पर ट्रेन किया गया, और अब ये जो है वी आर वेरी प्राउड कि ये जो PNRC में ये इसका पार्ट बन गया है और ये मैंडेटरी कर दिया गया। सो दिस विल बी अ गेम चेंजर। स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स को स्ट्रेंथन करने में यूनिसेफ सपोर्ट कर रहा है, और इसमें इस सिलसिले में 12 level 2 नर्सरीज को हमने स्ट्रेंथन किया है। वी आर गिविंग द स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट, रिफर्बिशमेंट ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ केयर स्टाफ। स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न केयर की गाइडलाइंस पे हमने ट्रेनिंग्स कराई है 169 पीडियाट्रिशियंस की अक्रॉस 29 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। ऑक्सीजन प्लांट यूनिसेफ ने लगा कर दिया है 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मुजफ्फरगढ़ और बहावल नगर में, एंड दिस हैज़ बीन वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट। वो उसकी पूरी ऑक्सीजन नीड्स को फुलफिल कर रहा है, और सिर्फ फुलफिल नहीं करता, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, और हमें कहा जा रहा है कि हमें फर्दर सपोर्ट किया जाए, एंड वी आर लुकिंग इनटू इट कि कोई फंड्स हों तो उसको हम फर्दर सपोर्ट करें। जैसे कि मेंशन किया गया कि डिजीज़ प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे इस पे फर्दर बात होती रहेगी कि ये जो हमारी एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं, ये जो भी हैं, अगर एंटीनेटल विजिट्स के दौरान या आफ्टर डिलीवरी अगर टाइमली स्क्रीनिंग हो जाए तो हम बहुत सी बीमारियों को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।
Thank you very much, Dr. Saira. Now I invite Dr. Nudrat Rashid, who is consultant gynecologist and public health expert with the UNICEF and WHO, and she worked on maternal, neonatal, and reproductive health and capacity building. Madam, kindly lead this expert session. Assalamu alaikum everyone. Thank you Dr. Shagufta for giving me time. जी, preventing the preventable and never miss the treatable. ये मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसका सिर्फ हेडिंग या हेडलाइन नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज़ है और आई एम श्योर ये आप लोगों के भी दिल की आवाज़ होगी. तो इसके साथ हम शुरू करते हैं कि हम क्या प्रिवेंट करना चाह रहे हैं. एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो मदर के अंदर हैं और जो बेबी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं या जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. फॉर मदर्स, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म. और बेबी के लिए हाइपोग्लाइसीमिया, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया. ये वो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये वो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, टाइमली इंटरवेंशन भी कर सकते हैं. तो की स्ट्रेटजीज हम क्या अपनाएंगे, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम इन डिसऑर्डर्स को, जब भी न्यूबॉर्न की बात होती है तो उसको जो है वो उसकी हेल्थ की बात होती है, तो हम कहाँ से चलते हैं, इन यूट्रो. माँ की हेल्थ से बात शुरू होती है और माँ की हेल्थ की भी बात होती है, तो माँ की हेल्थ की बात उसके कंसीव करने से भी पहले से शुरू होती है. तो मैनेजमेंट ऑफ मैटरनल एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जो कि मेरा पार्ट है, और स्क्रीनिंग ऑफ न्यूबॉर्न जो कि रिस्पेक्टेड डॉक्टर फरा जो हैं वो इसको एक्सप्लेन करेंगी. अब गुड एंटीनेटल केयर, जब भी गुड एंटीनेटल केयर या क्वालिटी एंटीनेटल केयर की बात आती है, उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: मेटिकुलस मॉनिटरिंग, टाइमली इंटरवेंशंस एंड रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन. अगर आप ये 3 काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपने क्वालिटी एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर दी. की आउटकम ऑफ क्वालिटी एंटीनेटल केयर जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, न्यूबॉर्न मॉर्टेलिटी के कम करने के लिए, मॉर्बिडिटी कम करने के लिए काम कर रहे हैं. तो बेबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिड्यूस पेरीनेटल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एनोमलीज स्पेशली कंजेनिटल एंड स्ट्रक्चरल एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज, रिडक्शन इन एडवर्स पेरीनेटल आउटकम एंड लेस एडमिशन टू NICU. मदर के लिए भी इसी तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं उसमें कमी आ जाती है, जिसमें मेन मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी कम करना है और उसके साथ पॉजिटिव प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस. द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, मोस्ट प्रेवलेंट थिंग, गेस्टेशनल डायबिटीज़. पाकिस्तान इज़ फेसिंग अ सीवियर डायबिटिक क्राइसिस. मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं. तो एक सर्वे के मुताबिक जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ है, उसका कहना है कि पाकिस्तान में 26.7% जो है वो प्रेवलेंस है डायबिटीज़ की, और उसमें 1 in 3 एडल्ट में जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली अफेक्ट हो रहे हैं डायबिटीज़ से. वर्ल्ड वाइड आप लोगों को पता है फिगर है 830 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से अफेक्टेड हैं. इसी तरह वर्ल्ड वाइड 1 in 6 प्रेगनेंसी जो है वो डायबिटिक प्रेगनेंसी है. पाकिस्तान में ये रेशो थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी भी अलार्मिंग हद तक वो बढ़ रहा है. एग्जैक्ट फिगर्स हमारे पास नहीं हैं, लेकिन इसकी वेरिएशन है प्रोविंशियल लेवल्स पे. किसी प्रोविंस में ज़्यादा है, किसी में कम है. सिंध में ज़्यादा है, पंजाब उसके बाद नंबर आता है, फिर बलूचिस्तान और फिर उसके बाद KP के. तो 1 to 20% वेरिएशन है, लेकिन एक पंजाब में एक सर्वे के मुताबिक 11.6% जो प्रेवलेंस रेट है वो डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ का है. अब डायबिटिक प्रेगनेंसी में हमने करना क्या है, रिकमेंडेड केयर पैटर्न मैं आपके सामने रख रही हूँ. इसमें सबसे पहले आता है प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग, केयर प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस जब आपके पास पेशेंट पहली दफ़ा आ जाए, और उसके बाद मेटिकुलस एंटीनेटल केयर, फिर इंट्रापार्टम इंटरवेंशंस, फिर उसके बाद आ जाता है पीडियाट्रिक वालों का काम कि बेबी हमने डिलीवर कर दिया तो पोस्टनेटल ये क्या करेंगे, स्क्रीनिंग कैसे करेंगे. तो प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग एंड केयर में जो इम्पोर्टेंट हैं 5-6 पॉइंट्स हैं जो आप हर खातून के साथ डिस्कस कर लें जब भी जहाँ भी बैठे हुए आपको वो खातून मिल जाए. ये प्रेगनेंसी से पहले की काउंसलिंग है. जब भी कोई जो है रिप्रोडक्टिव एज की खातून आपके पास आती है उसमें, और स्पेशली जो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक्स आ जाते हैं, या कोई ऐसी पेशेंट आपको हिस्ट्री दे देती है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की, तो उसमें आपने प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग में सबसे पहले टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक्स को ग्लाइसीमिक कंट्रोल के बारे में बताना है. आपका गोल है कि आप बर्थ डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करेंगे, फीटो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करेंगे. ग्लाइसीमिक कंट्रोल में 2 बातें हैं.
कि हीमोग्लोबिन A1C लेवल टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटिक में 6.5% होना चाहिए। अगर उनका लेवल इससे ज़्यादा है, 10 तक है, तो आप बिल्कुल प्रेगनेंसी कंसीव करने से मना कर दें, और अगर उससे ज़्यादा है तो उसको पहले नॉर्मल पे लाने की कोशिश करें। इसी तरह अगर हीमोग्लोबिन A1C लेवल आपके पास नहीं है, कोई आम खातून आपके पास आ गई या आपने उसकी ब्लड शुगर करवाई है और उसका फास्टिंग लेवल मोर देन 95 मिलीग्राम परसेंट है, या उसका जो है वो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल 120 मिलीग्राम परसेंट पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो प्रेगनेंसी उसको अवॉइड करनी चाहिए, पहले उसको नॉर्मल लेने आना चाहिए। इंटेंसिव सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक की पेशेंट जब भी आपके पास आए, उनको पहले सेल्फ मैनेजमेंट और ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में बताएं। मेडिकेशन रिव्यू करें। इंसुलिन प्रेफर्ड मेडिसिन है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए, और जो मेडिसिन जो हैं वो अनसेफ प्रेगनेंसी में हैं, उनको मना कर दें, ख़त्म करवा दें जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हों। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट करें। न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स, जैसा कि डॉक्टर निघत ने आपको मेंशन किया था कि ये जो एंटीनेंटल केयर में हम चीज़ें शुरू कराते हैं, इसमें फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी, ये वो सप्लीमेंटेशन है जो हम हर खातून को देते हैं। और यहाँ पे हम स्पेशली इसलिए देंगे कि डायबिटिक्स में जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो फोलिक एसिड जो है वो हमने लाजमी शुरू करानी है। प्लस हम अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, लाइक हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, तो आयोडाइज सॉल्ट का मशवरा हर खातून को ज़रूर दे दिया करें। इसी तरह वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन स्टेटस पता करना बहुत ज़रूरी है। रुबेला, हेपेटाइटिस, कोविड ऐसी वैक्सीनेशन है जो हर एक की हुई भी होनी चाहिए। फिर प्लानिंग एंड काउंसलिंग। अनवांटेड प्रेगनेंसी कभी भी नहीं होनी चाहिए, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी कभी नहीं होनी चाहिए। 2 प्रेगनेंसी के दरमियान 3 ईयर्स का डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप सब जानते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो खातून कंसीव करने जा रही है उसका BMI 27 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हो, या फिर वो जो है अगर ज़्यादा BMI है, 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर अगर BMI है, तो आप प्रेगनेंसी अवॉइड करें। ये तो थी प्री कॉन्सेप्शन बातें कि खातून ने अभी कंसीव नहीं किया। एक दफ़ा खातून ने अगर कंसीव कर लिया और आपके पास फर्स्ट विजिट में आ गई है, तो आपने सबसे पहले उसकी रिस्क असेसमेंट करनी है। रिस्क असेसमेंट के लिए ये चंद रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हाईली सजेस्टिव होते हैं कि इस खातून को गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। इसमें बॉडी मास इंडेक्स 30 किलोग्राम से ज़्यादा है, प्रीवियस मैक्रोसोमिक बेबी की हिस्ट्री है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, या हाई रिस्क एथनिसिटी है, या ग्लाइकोज यूरिया है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग है, अच्छा इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगी कि एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग अब रिकमेंडेशन है। पहले ज़माने में हम लोग हर पेशेंट का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नहीं करते थे। अब रिकमेंडेशन ये है कि आपने हर पेशेंट का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना है। ग्लूकोज स्क्रीनिंग के लिए जो बाकी टेस्ट इस्तेमाल होते थे, उनकी जगह ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को इस्तेमाल करना है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की स्क्रीनिंग आपको रिजल्ट जो हैं वो इस पे लिखे नज़र आ रहे होंगे कि अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 2 आवर्स जो है पोस्ट प्रेंडियल 153 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये पेशेंट गेस्टेशनल डायबिटीज़ डिक्लेयर हो गई है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आती है और उसका जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल, या आपने उसका OGTT किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग जो है उसका 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ गया, और 2 आवर्स के बाद उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 129 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये खातून पहले से डायबिटिक थी लेकिन डायग्नोज प्रेगनेंसी में हो रही। तो इस स्लाइड में 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करनी है, यानी हर पेशेंट की फर्स्ट एंटीनेटल बुकिंग विजिट पे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के साथ स्क्रीनिंग जरूर होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद एंटीनेटल केयर आती है। रूटीन एंटीनेटल केयर में क्या होता है ये तो डॉक्टर निघत ने भी डिस्कस कर लिया और आप सबको भी पता ही होगा। लेकिन जो डायबिटिक प्रेगनेंसी है या गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, उसके लिए WHO ने नवंबर 2025 में लोकल गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसके मुताबिक इन चीज़ों पे हमें फोकस करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो केयर प्रोवाइडर्स की बात आ जाती है कि कौन से लोग जो है वो उस डायबिटिक प्रेगनेंसी की केयर करेंगे। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक्स मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के अंडर ट्रीटमेंट रहेंगे।
उस टीम के अंदर एक ऑब्स्टेटिशियन होना चाहिए, एक मिडवाइफ होनी चाहिए, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और एक डाइटिशियन, और ये आपको मिलेंगे सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे, ये प्राइमरी लेवल पे नहीं मिल सकते। तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक्स हमेशा सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे ट्रीट होंगे। जीडीएम के पेशेंट जो गेस्टेशनल डायबिटीज है उनकी इंटीग्रेटेड अप्रोच हो सकती है, उसमें एक एंटीनेटल रूटीन एंटीनेटल केयर के साथ आप लोगों ने एम्बेड करनी है डायबिटिक मैनेजमेंट। तो वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फिजिकल विजिट भी करा सकते हैं। फिर नंबर ऑफ विजिट आम प्रेगनेंसी में कितने होते हैं? इंटरेक्टिव में जरा टाइम ज्यादा लग जाएगा, मैं खुद ही बता देती हूँ कि 8 होते हैं। तो रूटीन प्रेगनेंसी में 8 एंटीनेटल विजिट हम रिकमेंड करते हैं। डायबिटिक प्रेगनेंसी में जो है वो हमारे विजिट्स इससे ज्यादा होते हैं। हम ये रिकमेंड करते हैं कि बुकिंग के बाद हर 2 हफ्ते बाद जो है वो पेशेंट को अपना विजिट करना चाहिए और लास्ट टाइमेस्टर में वीकली विजिट करना चाहिए। फिर एंटीनेटल एजुकेशन, पेशेंट की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वो जो एजुकेशन है वो ज़रा डिटेल में मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन अभी ज़रूरी ये है कि पेशेंट को पता चल जाए कि डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट बेबी पे क्या होगा और उसके अपने ऊपर क्या होगा। ग्लूकोज मॉनिटरिंग में रिकमेंडेशन ये है कि पेशेंट को सेल्फ मॉनिटरिंग आनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का एक अपरेटस होता है जो टाइप 1 डायबिटीज़ में यूज़ हो सकता है, उसका मना नहीं है, लेकिन पेशेंट को सेल्फ मॉनिटरिंग आनी चाहिए। और सेल्फ मॉनिटरिंग जो है वो हम पेशेंट से करवाते हैं, एक फास्टिंग लेवल करवाते हैं, एक जो है पोस्ट लंच करवा लेते हैं, एक पोस्ट डिनर करवा लेते हैं और एक 11 बजे रात को करवा लेते हैं अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक हो रात के वक्त। हीमोग्लोबिन A1C जो है वो सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए है, जीडीएम के पेशेंट को उसकी जरूरत नहीं है। चल नहीं रहा आगे। अच्छा जी, ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप हर पेशेंट का ग्लाइसेमिक कंट्रोल इंडिविजुअलाइज करें अराउंड जो नॉर्मल लेवल दिए हुए हैं आपको उसके। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में टाइप 1 डायबिटिक्स इंसुलिन पे ही होते हैं हमेशा और इंसुलिन पे ही रहेंगे। टाइप 2 डायबिटिक एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी से मैनेज हो सकते हैं। अगर उनको ज़रूरत पड़े तो आप ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट ऐड कर सकते हैं, इंसुलिन ऐड कर सकते हैं, दोनों ऐड कर सकते हैं। और जीडीएम के पेशेंट्स के साथ भी बिल्कुल वही है कि डाइट और फिजिकल एक्टिविटी पे मैनेज हो सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे इंसुलिन गोल्ड स्टैंडर्ड है। फीटल मॉनिटरिंग एंटीनेटल पीरियड में एक सबसे पहले जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी, हमारे यहाँ अल्ट्रासोनोग्राफी फौरन ही हो जाती है ना, तो बुकिंग विजिट पे सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी टू कंफर्म प्रेगनेंसी। सेकंड जो है वो 16 to 24 वीक्स पे है, जो इसके अंदर मिसिंग है, स्लाइड पे आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन वो स्कैन जरूरी है क्योंकि वो एनॉमली स्कैन होता है। 24 to 28 वीक्स पे अगेंस्ट एनॉमली स्कैन, फिर 30 से 36 वीक्स पे ग्रोथ स्कैन एंड एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट। 37 से 39 वीक्स पे ग्रोथ स्कैन, एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट और साथ ही बायोफिजिकल प्रोफाइल भी कराना ज़रूरी है और सीटीजी भी करानी ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि आपने सुना होगा कि जो डायबिटिक प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें इन आईयूडी के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अचानक हो जाते हैं, तो इसलिए जो है हमारी जो फीटल मॉनिटरिंग है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है लास्ट ट्राइमेस्टर में। रेटिनल एंड रीनल असेसमेंट सिर्फ उन केसेस में होती है जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं। चलिए जी, अब एंटीनेटल एजुकेशन जो मैंने कहा था कि थोड़ा सा उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आपने खातून को एजुकेट करना है इफेक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन फीटल हेल्थ, इफेक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन हर हेल्थ। तो जो खातून के ऊपर असर है वो तो होता है कि रिस्क ऑफ डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, उसको लेटर ऑन लाइफ में डायबिटीज हो सकती है। जो इफेक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन फीटल हेल्थ है, जैसे गुड साइज बेबी है, शोल्डर डिस्टोशिया है, नर्सरी में एडमिशन के रिस्क बढ़ जाता है, ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है लेटर ऑन लाइफ, टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। ये डॉक्टर फराब के साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन जो आपने खातून को देनी है वो उसकी डाइट के हवाले से है। डाइट के हवाले से एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसमें आपने सिंपल और उसको बताना है कार्बोहाइड्रेट्स लेस देन 50%। उसमें हम कहते हैं 6 सर्विंग्स पर डे, एक सर्विंग होती है एक स्लाइस या आधी रोटी के बराबर, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने का मशवरा दें। प्रोटीन 10 to 30%, 2 to 3 सर्विंग्स। इसमें भी फैट फ्री उन्होंने लेना है, फिश पोल्ट्री रिकमेंडेड है, लीन कट मील भी रह सकती हैं। फैट्स बहुत ही लोअर इनटेक, कम से कम फैट इस्तेमाल करें
और ऑयल में कैनोला और ऑलिव ऑयल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 3 to 5 सर्विंग्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाली है वो ये है कि उन्होंने फ्रूट जूसेस इस्तेमाल नहीं करने। मिल्क एंड डेयरी 4 सर्विंग्स। 1 कप मिल्क 1 सर्विंग के बराबर होता है और इसके अंदर लो फैट प्रोडक्ट्स यूज करनी है। थर्ड जो एजुकेशन है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस के मुतालिक। इसमें 2-4 बातें मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि वेट मैनेजमेंट ज़रूरी है, BMI कंट्रोल रखना ज़रूरी है, गेस्टेशनल वेट जो बढ़ना है उसको कंट्रोल रखना ज़रूरी है। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि 22 to 30 मिनट्स वॉक पर डे या टोटल 150+ मिनट्स अ वीक। इस फिजिकल एक्टिविटी को वो जारी रखें। कैफीन का इस्तेमाल कम से कम करें। उसके लिए आपने उन्हें बताना है कि 2 से 3 चाय के कप, इससे ज़्यादा नहीं। अल्कोहल, निकोटीन, रिक्रिएशनल ड्रग्स, इनको अवॉइड करना है। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हम अवॉइड करने का मशवरा देते हैं। ब्लड ग्लूकोज की सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, वो उनको सिखाना है, आपने एजुकेट करना है। और इसके अलावा फीटल ग्रोथ और वेलबींग के बारे में उनको बताना है। अब आ जाती है जी इंट्रापार्टम केयर। इंट्रापार्टम केयर यानी डिलीवरी का टाइम, उसमें 2 बातें याद करनी ज़रूरी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, प्लेस ऑफ डिलीवरी और टाइम ऑफ डिलीवरी। जो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं उनकी डिलीवरी नॉन कॉम्प्लिकेटेड केसेस में 37 to 38 वीक्स पे हो जानी चाहिए और ये सेकेंडरी या टर्शरी केयर में होनी चाहिए। अगर डायबिटिक टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटिक का विद कॉम्प्लिकेशन है, यानी कोई और भी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के अलावा, तो उन्होंने डिलीवर होना है बिफोर 37 वीक्स और ये सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर लेवल पे डिलीवरी होगी। गेस्टेशनल डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो केसेस हैं जो हम मैनेज कर सकते हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, जहाँ पे भी उनके पास एक्सेस है। लेकिन अगर गेस्टेशनल डायबिटिक्स जो हैं उनको डिलीवर कराना है हमने 39+ पे, और जो गेस्टेशनल डायबिटिक्स कॉम्प्लिकेशन के साथ हैं उनकी डिलीवरी 38 वीक से पहले होगी और उनको भी फिर आपको रेफर करना पड़ेगा। ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग डिलीवरी ग्लाइसेमिक कंट्रोल 4 to 7 मिलीमोल के करीब होना चाहिए और अगर ग्लूकोज देने की ज़रूरत है तो डेक्सट्रोज और इंसुलिन इन्फ्यूजन यूज़ होगी। पोस्टपार्टम केयर में 2-3 मैसेजेस ज़रूर देने हैं। एक तो जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उन पेशेंट्स को लेटर ऑन लाइफ में डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एक तो डिस्चार्ज करने से पहले उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करें। दूसरा 6 to 8 वीक्स पे उनका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ज़रूर करें। अगर 6 to 8 वीक्स पे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, डायबिटिक नहीं वो डिक्लेयर होते, तो उनको एनुअल डायबिटिक स्क्रीनिंग का मशवरा दें, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का बताएं, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग, एंटीनेटल केयर के बारे में बताएं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक्स को उनकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाने का बताएं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट कम करने का बताएं और एक और मैसेज उनको लाजमी दें कि उन्होंने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। न्यूनेटल केयर में जो है वो 2-3 बातें ही हैं। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। डायबिटीज़ के बारे में बात हो गई। अब हाइपरथायराइडिज्म का मैसेज बहुत ही और शॉर्ट करो, बस हो गई, 3 स्लाइड्स रह गई है। इजाजत है, चलिए, थैंक यू। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड फंक्शन टेस्ट बुकिंग विजिट पे कराने हैं। मैनेजमेंट में उसकी आपने प्रोपाइल थाइयूरेसिल, इसमें एक ही काम की बात है याद करने वाली कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने प्रोपाइल थाइयूरेसिल यूज़ करनी है, उसके बाद आप जो है मेथिमिजोल यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ नहीं करनी। और जब भी आपने इसको मॉनिटर करना है तो आपने ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक रेफरेंस देखना है मॉनिटरिंग के लिए, वैल्यूज़ के लिए। हाइपोथायराइडिज्म में इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीवोथोरेक्सिन पे पेशेंट ऑलरेडी होगी, उसकी डोज आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 10 to 30% इंक्रीज कर देनी है और उसकी मॉनिटरिंग थायराइड TSH के जरिए होनी है। हाइपर पैराथायराइडिज्म में इंपॉर्टेंट बात सिर्फ एक ही है कि मैटरनल कैल्शियम लेवल जो है वो 2.85 मिलीमोल तक आपने रखना है, इससे ऊपर नहीं जाने देना क्योंकि फीटस में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं। अगर ज़रूरत पड़ जाए पैराथायराइडेक्टमी की तो वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगी। इसको मैं छोड़ देती हूँ डॉक्टर फरा के लिए। टेक होम मैसेज ये है कि हम जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे, हमारे साथ जहाँ पे भी
जो है माँओं और बच्चों का कांटेक्ट होता है, वहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम उनको प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्री कॉन्सेप्शन केयर, एंटीनेटल केयर और टाइमली रेफरल के बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Dr. Nujat. What a wonderful presentation, very knowledgeable. Now I invite Dr. Sabah Bakht, who is Assistant Professor at Akhtar Saeed Medical College, and she believes in evidence-based and compassionate newborn care. I invite her for discussion on postnatal prevention of endocrine disorders of newborn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As Dr. Shugufta told, I am Dr. Sabah Bakht and I am working as Assistant Professor Pediatrics and Neonatology. So, to start with, we have been repeating about endocrine problems that prevention is always better than cure. So, as Madam also tells that diabetes is very common in our society, that 1 in 3 adults and 1 in 6 pregnancies are affected by diabetes. So, this is the most important and most prevalent thing, that the baby will be infant of diabetic mother. The second most important disorder, endocrine disorder, that is very important is hypothyroidism. It becomes more important because it is the preventable cause of mental retardation. If you can save a baby from mental retardation just with screening and treatment, it makes hypothyroidism more important. So third one is hypocalcemia, and the fourth one is the congenital adrenal hyperplasia. That is also a diagnostic dilemma, and we can also prevent it by proper screening and proper treatment during pregnancy. So I have a very small presentation, and just to give you a food for thought. Today, the learning objectives are when to anticipate these problems. You have in your mind that when you are going to anticipate them, and what you are going to anticipate if you have risk factor in a mother. Then you should know how to screen them, and then the treatment at primary, at secondary level, and there should be alarm in your mind that when you are going to refer to a tertiary care center. And after that, what is the treatment at tertiary care level? So brisk and focused. So that looks a very irrelevant slide, because from the morning you are studying endocrine disorder. Just to give a diversion, I just want to ask, anybody have read this book, Thinking Fast and Slow? So I have chosen 2 pages from this book for you. This one, no need to read it. I'll summarize it for you. This is a Mr. Paul Meehl. He compared the expert clinical judgment with simple statistical formulas for prediction. And across many studies, he come across when you have algorithms, flowcharts, scores, and bullets in your mind, you are not going to miss anything. So we can't deny the clinical judgment and experience over the years, but it to give more standardization. So he also gives an example like this. The example is of APGAR score. So from years, the assessment of a newborn was done only on the clinical judgment, but then comes the APGAR score. The benefit is that even if a sister or a junior level doctor is there as a skilled birth attendant at the birth of the baby, or if there is a consultant, both can have same scores from 0 to 10. So this gives you a better clinical judgment, and that is the main point behind this presentation. So start with the most important one is the infant of diabetic. So when to anticipate the baby would be infant of diabetic mother. So if the mother has gestational diabetes, pre-gestational diabetes, or if the mother has poor glycemic control. And sometimes you have to think about it in retrospection when the baby is large and have polyhydramnios. So what to anticipate in a neonate? The baby could be small, baby could be large,
And baby, sometimes baby have no symptoms, but you can suspect that hypocalcemia, hypoglycemia, hypomagnesemia can happen. The other problems, respiratory problems, are RDS, TTN, and polycythemia, jaundice. If the baby is large, that, as madam tells, that shoulder dystocia chance is there, then there is a chance of nerve injuries. And more common in the pre-gestational diabetes, there are congenital anomalies that can happen. These are cardiac, neural tube, and renal anomalies. So once you have anticipated this, you are going to screen the baby. And now, how to screen the baby? First of all, that comes in our mind is hypoglycemia. So glucose level for after the delivery for next 48 hours. And how you are going to monitor it, I'll give in the flow chart at the end. Then serum calcium level at first day, and then the serum magnesium level if the calcium is low, and hematocrit at the birth, and then at the 24 hours of life. So if on the physical examination there is jaundice, you can order a serum bilirubin, and the other labs if only indicated, like arterial blood gases, complete blood count, cultures, and gram strain. Radiological tests also indicated when cardiac respiratory symptoms are there, and obviously ECG and echo is also if indicated. So the other concern, what you can treat at the primary and secondary level. So when you have the anticipation, there should be presence of a skilled birth attendant at the delivery. Then warm, dry, stimulate, and follow the same steps of resuscitation. Now comes the observation. Within 30 minutes, you have to start, as madam said, the mother feed should be started. And if the mother feed or the enteral feed is not established, then we can go for IV 2 ml per kg dextrose. So when alarm comes in your mind that we are going to refer to the tertiary care, this is when there is recurrent or refractory hypoglycemia, or the infusion rate exceed more than 15 mg per kg per minute, there is respiratory distress, or if you need a multidisciplinary approach for the congenital anomalies, and obviously if there is birth injury. At the tertiary level, you can go above, is written wrong, because you can go to 20 mg per kg per minute. Then you focus on the electrolyte correction, management of respiratory problems, if required, echocardiography, and the multidisciplinary consultation if required. This is the flow chart. The important thing is that glucose monitoring should be started within the first hour. First glucose should be checked after the feed, and all other glucose should be checked before the feed. And first hour half hourly, then 1 hourly for 4 hours, then 2 hourly till 2 consecutive readings are normal. So this is the flow chart, you can go through. So that's a quick review about infant of diabetic. The second most common endocrine problem is hypothyroidism. So congenital hypothyroidism is the most common neonatal endocrine disorder that is preventable cause of mental retardation. And screening is done either as a part of routine metabolic screening of the newborn, or a separate blood specimen can be used at 2 to 4 days of birth. This is discussed in the session in the morning as well, that it is going to be a universal screening for hypothyroidism. When to anticipate if the mother is hypothyroid or there is a family history, and we are going for the universal screening, so you have to anticipate in every way. What to anticipate? There could be many symptoms, but more common are prolonged jaundice, poor feeding, and hypotonia. So how to screen? If the maternal history of thyroid medication is there, or if there is a history of family history of thyroid disease, you can do cord blood screening even. Every baby should be screened at 2 to 4 days of life, and a second screening is recommended, as previously discussed in the morning as well, if the baby is preterm, low birth weight, critically ill baby, or if the first test is done within 24 hours due to TSH surge, or if there is a low T4 and TSH concentration is more than 20, this is the indicator of congenital hypothyroidism. It's just a quick review of NHS screening.
So NHS screen everybody with the blood spot screening at 5 to 8 day, and in the preterm our repeat test is done at 28 days. So what you can do at the primary and secondary care level, again with a skilled birth attendant at the delivery, warm, dry, stimulate and follows the steps of resuscitation. Screening is not always available at primary and secondary level, but if available, you can go for it. Otherwise, you have to refer for screening to the tertiary care level. Obviously, when you have to do a TSH level, you have to refer to the tertiary care level. And if the measurement is done and it is low, then for the treatment, you have to refer to a endocrinologist. Or if the baby is symptomatic, then you also have to refer to tertiary care. So at the tertiary care level, consultation with the endocrinologist and further tests for the hypothyroidism and start the thyroxine. Then there is a written follow-up plan till 3 years. This is a quick follow-up that with after the initiation of therapy at 2 weeks and 4 weeks, then monthly for 6 months, and then 3 monthly till 3 years, and then you do it as 6 monthly. But if the dose is changed, it's near puberty, or if there is compliance issue, you can do it more frequently. The third problem is hypocalcemia. So when to anticipate about hypocalcemia? If the mother is having diabetes, we have discussed that within 24 hours we do calcium level. If there is maternal vitamin D deficiency, if the baby is preterm, IDM, severe asphyxia, IUGR, and if the mother is on anti-epileptics, hypoparathyroidism, and it could be iatrogenic. Sometimes it is asymptomatic, and if it is symptomatic, it has seizures, jitteriness, tremor, apnea, stridor, irritability, and lethargy. So in all the baby who have risk factor, you are going to do serum calcium level at 24 to 72 hours. Then what you are going to do at primary and secondary level, in the absence of risk factor, if the baby is asymptomatic, there's no need of any treatment, but in high risk, you have to investigate and manage. I'll show the algorithm at the end. And if the baby is taking orally, the oral route is preferable, that is 50 to 60 mg per kg per day. And if the baby is not taking orally, then you can go for IV. So when to refer to tertiary care level, it is seizures and refractory hypocalcemia. And at the tertiary care level, correct the electrolyte and obviously investigate the cause and consult with the endocrinologist. This is the flow chart, and this concentrate on the enteral route, and then if not, the baby is not taking enterally, then on the IV. The fourth most common, and I want to discuss is the time is less, so congenital adrenal hyperplasia. When to anticipate? Ambiguous genitalia, you are all going to anticipate it. Family history के सामने मैंने question mark इसलिए लिखा कि if there was a family history, it should be managed at the antenatal level. आप पहले शुरू कर दो. That's why another baby should not come. So इस पे तो question है. If there is an undocumented death, then you can say that there is a family history of undocumented. There could be CVH. So quickly, what to anticipate: severe dehydration, respiratory distress, acidosis, hypotension, hyponatremia, hyperkalemia, and hypoglycemia. So in the screening, you do a good clinical examination, electrolytes, ultrasound abdomen, and if the suspicion is strong, 17-hydroxyprogesterone and karyotyping accordingly. Then at the primary and secondary level, you have to always refer such a baby to the tertiary level. But if the baby is in the shock, then you have to give hydrocortisone and fluids as well. All the suspected cases should be referred to tertiary care level. So at the tertiary care level, there is hormonal confirmation test and long-term steroid therapy. So this is not the end of the presentation. I want to have an end note with respected Madam Dr. Farah to complete this incomplete presentation. Thank you, Dr. Sabha, for making it a very precise and to the point presentation. मैंने सिर्फ इसको सारी presentations को एक nutshell में बताना है कि
how we can prevent and treat endocrine problems. अगर हम देखें तो what we have learned today कि हमने दो aspects को cover करना है. One is the mother and one is the baby. और हमने anticipate करने हैं problems and then to treat them. Antenatal मदर जो है उसमें हमने एंटिसिपेट करना है और कब करना है वो डॉक्टर नुसरत ने बहुत अच्छी तरह बताया था कि मदर का BMI ज़्यादा है या मदर का जो है A1C दैट इज़ हाई, तो उसके मुताबिक हमने एंटीनेटल विजिट्स करने हैं, 4 और मोर एंटीनेटल विजिट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स एंड देन रेफर द मदर अगर ज़रूरत है एंड व्हेन टू रेफर टू प्राइमरी and from the primary to the tertiary healthcare facility. Birth attendant should be जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, अगर infant of diabetic mother है या hypothyroid mother थी, तो it has to be attended by a skilled birth attendant for high risk baby. And postnatal care हमने कैसे करनी है at the primary, secondary and linkage to the tertiary care unit. What to anticipate? अभी तक शायद हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं बेबी में कि हमें कुछ इंडिकेटर्स मिल जाएं. कोई शेयर करेगा क्या बच्चों में से क्या एंटिसिपेट आप कर रहे होते हैं? कॉमन प्रॉब्लम्स कैसे डायग्नोज करेंगे कि हाँ ये एंडोक्राइन प्रॉब्लम है तो बड़े कॉमन से, बच्चे को फिट हो रहा है, फीड नहीं ले रहा, जॉन्डिस है या बहुत ज़्यादा एक्टिव है जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में, या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है, वॉमिटिंग है जैसे कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है. तो हमने ये बहुत कॉमन से सिम्टम्स हैं और बहुत काफ़ी दफ़ा ये मिस भी हो जाते हैं. तो जब भी बच्चा आए फिट्स के साथ, डिहाइड्रेशन के साथ, वॉमिटिंग के साथ, तो हमने कुछ चीज़ें बैक ऑफ द माइंड में रखनी है कि हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया तो नहीं है. और एक कॉमन चीज़ जो हम बहुत कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स भी मिस कर देते हैं कि पैम्पर खोल के नहीं देखते और वो बच्चा कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया का होता है. तो ये चीज़ें आपने एंटिसिपेट करनी है और याद रखनी है कि बच्चा इस तरह प्रेजेंट कर सकता है. सिम्टम्स बहुत वेग और कॉमन है लेकिन डिजीज बहुत बड़ी होती है. सो व्हाट टू स्क्रीन, जो केयर ऑफ सिक एंड स्मॉल न्यूबॉर्न की बेबीज की किताब थी, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर की, यूनिसेफ ने जो डिज़ाइन की है, उसमें एक चैप्टर अब व्हाट टू स्क्रीन का है जो बहुत बेसिक है और हम अब उसको आगे लेके चलना चाहते हैं टू प्रोसीड फर्दर. व्हाट टू स्क्रीन इन द न्यूबॉर्न बेबीज. तो अभी तक जो हमने कहा है कि सिंपल चीज़ें जो प्राइमरी लेवल पे होनी चाहिए, दैट इज आई एग्जामिनेशन, यू शुड नॉट मिस कैटरैक्ट और रेटिनोब्लास्टोमा, एग्जामिनेशन ऑफ द हिप जॉइंट, DDH नहीं आपने मिस करना, हिप जॉइंट की एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे ब्रीच बेबीज में. मेटाबॉलिक स्क्रीन, बेसिक मेटाबॉलिक स्क्रीन हो जानी चाहिए स्पेशली फॉर थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म. हेयरिंग स्क्रीन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब हेयरिंग लॉस, सेंसरी और हेयरिंग लॉस के साथ आ रहे हैं, तो दिस अगर आप एंटिसिपेट करें या फैमिली में है तो उसकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए एंड रिफर टू टर्शियरी केयर. थायराइड स्क्रीनिंग, यहाँ पे अब काम होना ज़रूरी है कि वी शुड हैव यूनिवर्सल थायराइड स्क्रीनिंग जो अब पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए. और इसके लिए मेरे ख्याल में हम यूनिसेफ के साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस. स्क्रीनिंग फॉर कंजेनिटल हार्ट डिजीज, इस पे डॉक्टर हमारे जो वाइस चांसलर हैं उनका बहुत दिल है कि हमने बेसिक प्री पोस्ट डक्टल सैचुरेशन तो करनी है और एक बेड साइड एकोकार्डियोग्राफी प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे अगर हो सके तो, वरना टर्शियरी केयर में व्हेन टू रेफर जब वो साइनोटिक है. So the take-home message is that newborn, if we go through the newborn screening, there will be normal growth, normal cognition, and normal life. So I thank you UNICEF for organizing this breakout session, and now I will request Janet Salman to comment and sir also. After that, we will have session on scenarios. So our residents will present scenarios also.
We had a very useful and comprehensive session on newborn screening and good input regarding antenatal screening. Rather, I would start that the prevention has to start preconceptional. Now, one of the important things which, the neural tube defect, you can only prevent it if you start folate supplementation before conception. That means at least 3 weeks before conception, one should start the folate supplementation, because the neural tube defects, they are around 1% in this country, which is very closely mimics the incidence of congenital heart disease, as common as congenital heart disease, hydrocephalus and myelomeningocele and lifelong crippling. So preconceptional folate supplementation should be started. Rather, we should educate the parents that when they are marrying their daughters, they should give them folate supplementation at least premarital. That can be introduced. So that's a practical way of, preventing neural tube defects. So preconceptional. And then, of course, during pregnancy, you can do a lot. And for congenital problems, you can do antenatal diagnosis, in the first trimester. And especially for chromosomal disorders, you can make the diagnosis like Down syndrome. And you can prevent the birth of these babies with birth defects. So that's very important. And anomaly scan, as mentioned by the gynecologists, that anomaly scan is important because you find so many things in the anomaly scan. And some you can treat, some you cannot, but at least one should be, knowing before hand what are the problems with the fetus, Even fetal echocardiography, and people have done fetal neurosurgery also because on the basis of anomaly scan. And similarly, the renal problems, the hydronephrosis, you can treat antenatally if you detect. So you can prevent many things antenatally. And the other important thing regarding breastfeeding, I think the preparation has to be made antenatally. Because many times when we ask the mother, have you started breastfeeding? So she would say, I have retracted nipples. Now these things have to be diagnosed antenatally. If the gynecologists, obstetricians examine these mothers carefully and ask them, prepare the nipples beforehand so that they don't have problems of retracted nipples where the baby has problem of suction and breastfeeding, So these things have to be treated antenatally. So the antenatal preparation for breastfeeding should be made very carefully. And the other important thing is that we as doctors, we have got a lot of knowledge. So we are actually big bags of knowledge coming with our knowledge and going back again with the same bag of knowledge without disseminating it to the community. So we should find the ways of disseminating this vital knowledge to the community. And the important thing is in the area of breastfeeding, which we are not promoting. In fact, I am really disappointed with the breastfeeding rates, which have dropped very low. And the reason is we are not convincing our population. We are not convincing even our medical students. There are 3 lectures on breast cancer in a medical college, and I think hardly 1 lecture on breastfeeding to medical students. You need to lecture more regarding the nutritional value of breastfeeding to the students. And more newborns are lost for lack of breastfeeding.
and that's very important. So I think we have to set our priorities regarding that. We should start the education in schools, in undergrads, and even in hospitals. We need to have lactation clinics for mothers. There is no advertisement on the mass media for breastfeeding. So basically, there are no advocates for breastfeeding. That's why we are lacking in breastfeeding. So we have to be the biggest advocates, and currently, um, I think if somebody is convinced, then one would go only for breastfeeding, not for anything else, if you are convinced about the value. And I have got a gynecologist colleague whose neonate was under my care, and the neonate suffered from necrotizing enterocolitis with gut perforation. And the baby was unfit for surgery. The pediatric surgeon said, we can't do any surgery, so continue with your conservative treatment. So despite the gut perforation, we continued the conservative treatment and we started breastfeeding the baby. And his perforation sealed with breastfeeding. And the gynecologist colleague was so convinced with the results. She said, I'm going to continue breastfeeding. We said, continue for 2 years. She breastfed the baby for 3.5 years. And she was so convinced. So for my gynecologist colleagues, because she was again herself a gynecologist. So I think once you are convinced of the therapeutic and preventive value of breast milk, I think we should disseminate this to the, to our colleagues, as well as we should start the education at the undergrad level. And regarding the mass screening of problems like congenital hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia, this is very important. My longest follow-up with the congenital hypothyroidism, the oldest patient who comes to me is 27 years old. He refuses to go to an adult specialist. I repeatedly refer him to an adult endocrinologist, but again he comes back, he says, no, he doesn't understand my problem. And then my oldest patient with congenital hyperplasia, congenital adrenal hyperplasia, is 32 years old. Again, he refuses to go to the adult endocrinologist. He repeatedly comes back. So I think if you know the problems of these patients, definitely you would understand the value of prevention. So this is very important. I mean, at medical student level, probably you will just look at it as a lecture, but when you go through the experience of looking after these patients, you understand the value of what's being said here. Okay, so I think there is a lot to be said. Thank you very much for touching all the points. And I think Professor Amin Jan and Professor Aqeel would say something. I think the UNICEF program and Professor Farah has prepared such a nice sort of curriculum for all these students and covering all the public health and preventive strategies that little is left to be said. And they have rather, described much more than what is basically needed. Like we hardly take care of the endocrine problems and others, although they are all very important. So I would just be going back, and I would say that we are here to prevent the mortality and morbidity. And the mortality and the morbidity basically is from 3 or 4 diseases. They're all important. I don't say that they are not important. Whether it's diabetes or car care or breastfeeding or whatsoever. But major problem we have is the birth asphyxia, because we not only have the mortality but a lot of morbidity. And God forbid if you have one baby handicapped or CP in your home or family goes to the different altogether.
That is one. The second important cause, and which we can prevent through all endocrine, nutrition, and other fear, is the premature. We have to prevent birth asphyxia, we have to prevent prematurity, and then we have to prevent the sepsis. Simple hand washing. If we do simple hand washing, we can reduce deaths and disease by 50%. And then you can add the rest of it. The small and sick newborn care, and gender anomaly, jaundice, hyperthyroidism, vitamin K. That is yet to be introduced, and we often see even now, in second and third week, that people would come with an intracranial bleed and bleeding from so many other places. And you can just prevent it by giving a small injection, doesn't cost a lot. So these are the three areas which we basically focuses to prevent the morbidity and mortality. And then it can be post-mature period. The breastfeeding is definitely very important, as Dr. Masaf said, and it should be a part of the curriculum. Similarly, helping baby breathe or the newborn registration should be a part of curriculum. Basically, the KP neonatology group is working on it to introduce it as a part of the curriculum and to be taught to all medical students. And in that case, every birth should be attended by a pediatrician, if not neonatologist. I have been having the position of this newborn chairman, other position. And my dream has been that we identify and register all the delivery places. I don't know much about Punjab, but in KP, we would have less than 1% of the places which are registered with the health department. And by registering, we meant that if we register these institutions, then we can provide them a simple care like oxygen, like heating, and other than that. I would feel having so many of RHVs and other setups, we should identify where the babies are delivered. If we know that these are the places where babies are delivered, then probably we can give on these newborn babies as well. So I think one can set a lot, although you have said 90% or more than 90%, and we can all reduce the newborn death and mortality having such a good course and not very high problems. Somehow our again I would say not your job with PP, we do not have much sort of a vision or the political sort of initiative to take on this. Thank you very much. I think keep on and done a lot good, and God bless you. I'm not taking much time. I think we have done everything has been discussed. Thank you very much to all presenters, starting from Ilm and Nafia to end what we have said. If we, in real sense, with real spirit, if you do all these things what we have mentioned, and if I start from myself, believe me, it will take us only a couple of years that we will do. And again, another thing, we are investing most of our time in the tertiary care hospitals.
while we have left the community and we are not focusing on the public health. And there is poor liaison. We are doing on public health side as well. We are doing on the tertiary level as well. But there is poor liaison. I have never ever paid visit even to RHC of my village. So we have to have a unity. If we, all of us, we say that we come with, these are my few last words. If we come with unity, we appreciate the hard work of others, and we only focus that I'm not doing anything. All my colleagues, my team people, they are doing a lot, and they have invested their money and energies. And third thing, we have got the nearest zone between the public health and being the specialist of or the neonatologist, gynecologist. और हम जो है गायनाकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट अपनी लड़ाइयाँ थोड़ी सी कम कर लें और हम एक दूसरे को कहें कि आप जो काम कर रही है ना ये बेहतरीन काम है, बस ये मेरा वाला है, जिस गलती हो तो मैं इंशाल्लाह इसको कम करूंगा. सो यहाँ से अभी नियत कर लें that we have to reduce we have to reduce all sort of mortalities from maternal to neonatal, all sort of diseases, whether they are preventable, they are infection borne, they are with vaccination. We have to use our energies where I can do, where I have got relation. We should not look at a person like, for example, our president PPAKP sitting there, Bawar Shah Sahab, and I look at him that he should do his own way. No, if I know health minister is my relative, I will talk to him, and we have to work in forward direction. Thank you very much. You have been. And last thing, I'm very much thankful to all audience that you have listened to us with so patience, and still you are listening to us. God bless all of you. Thank you very much. Thank you very much, respected chairpersons, and what a wonderful message, that baggage of knowledge without dissemination. So we must think about it, we must disseminate it. Now we are moving on to our next session, which is question answer session. Very interesting and interactive session. I would encourage you all to kindly participate. Now I invite Dr. Khalida. Dr. Khalida have decades of working with WHO and UNICEF, and I invite her for this question answer session. And आपने एक बात याद रखनी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बोलने के मार्क्स हैं, सही और गलत मैटर नहीं करता. We will lead. Assalamu alaikum, my dear audience and seniors and all the respectable facilitators and my dear and near children hospitals, PGs and nurses. I'm very happy and glad today to teach something or to give some knowledge to them. So first of all, a little scenario. First of all, I read it and then you focused on the points, okay, on which points I am focusing, and then answer it. It's not a very डरने की बात नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं. So first of all, the scenario is 23-year-old woman grabbed a 2 para 1 known case of grave disease for last 2 years. On treatment grave disease की ले रही है with irregular antenatal follow-up. Thyroid function during pregnancy fluctuating है, कंट्रोल नहीं सही तरह, और एक न्यूबॉर्न डिलीवर किया है जिसका वेट 3 kg है, रेस्पिरेटरी रेट 68 है, हार्ट रेट उसका 170 है और सैचुरेशन जब पैदा हुआ है ऑन रूम एयर 88%. सो नेक्स्ट हम करेंगे, ये बच्चा डिलीवर हुआ है, आपको क्या नजर आ रहा है तो बताएगा, एक बंदा खड़ा होकर बता दे. यस, it could be hyperthyroidism, नहीं अभी ये एग्जामिनेशन में आपके बच्चे की नेक पे क्या नजर आ रहा है, सिर्फ Swelling. जनरल. neck swelling in the sides. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वेरी गुड, एक नेक स्वेलिंग है जो उन्होंने फौरन अप्रिशिएट किया ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन. सो देयर इज अ डिफ्यूज एंटीरियर नेक स्वेलिंग व्हिच इज फॉर्म है, नॉन टेंडर है, मिड लाइन है और कोई रेडनेस नहीं है, कोई वार्मथ नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस कंडीशन. पीजीज जी, इन 3 चीजों में से इधर ये थायरोग्लॉसल डक्ट है, या फिर सिस्टिक हाइड्रोमा है, ग्वाइटर है, या ब्रिंकियल सिस्ट है. जी ये ब्लू है. What is? Thank you, very good. You say why not thyroglottis? सिर्फ एक मैं क्वेश्चन करूंगी कि थायरोग्लॉसिस क्यों नहीं, वो भी यही कुछ होता है, मिड लाइन होती है, उसकी भी क्यों नहीं है. जी दो. सबसे पहले ये इसको आप सिर्फ एक को याद कर लें कि एसिम्प्टोमेटिक होती है, मदर्स में कोई हिस्ट्री नहीं होती ग्रेव डिजीज की ना, इसमें तो ले रही है, मेडिसिन भी ले रही है,
So we differentiate it. Second is, what causes this condition? First of all, पढ़ेंगे transparental passage of maternal TH receptor stimulating antibodies. Congenital thyroid agenesis है, thyroid hormone resistance syndrome है, ये suppression है fetal thyroid hormone. तीनों में से, चारों में से क्या है? कौन कहेगा? क्या बताए? कौन सा है? वो उनको वो पीछे. जी. A है transplacental passage of maternal thyroid stimulating hormone. Very receptor. good. Clap for her. Very good. Why not this? Why not 4? D. आप ही जो. सेंटर से क्रॉस की है, वो मेडिसिन ऑर्डर ले रही थी थायराइड के लिए, वो क्रॉस करके तो फीटस को ये डिजीज. बिल्कुल. Very good. Of course, which of the following most appropriate initial investigation? सबसे ज्यादा initial investigation appropriate कौन सी होगी? कौन सी वाली? C. T3, T4, T30. ठीक है. और कोई आंसर? A, B, C, D में से एक में तो C का G ब्रूज बटा. ठीक है. और so correct answer is A. अच्छा, अब A क्यों है? क्यों वो जो उन्होंने किया है सीरम T3, T4, TSH इज गुड. आपकी बात सही है, लेकिन क्योंकि ग्रेव डिजीज है, मेडिसिन पर है और ग्वाइटर आ गया, तो साथ में हम एंटीबॉडीज भी कराएंगे. थायराइड जो है ना रिसेप्टर एंटीबॉडीज भी कराएंगे. ठीक है, इसलिए फर्स्ट को हमने किया है. लेकिन अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पर बैठे हैं तो ये बिल्कुल करा सकते हैं. T3, T4, TSH. So what is the most important appropriate initial management? ग्वाइटर है इसको, ग्रेव डिजीज की माँ को, और पीछे क्लिनिकल सिम्टम्स पर जाएं और तब मुझे बताएं. क्लिनिकल सिम्टम्स पर जाएं तो मैंने बताया उसको. और C option. yes, good. C option. Why C option? जल्दी करना, मेरे टाइम कम. मैम क्योंकि इसकी स्वेलिंग हो रही है ना, तो हमें फौरी तौर पे इंट्यूबेशन करनी पड़ेगी. शाबाश. एक तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, टेकिकार्डिया है, और तीसरी चीज उसकी थी सैचुरेशन. सो एट द प्राइमरी लेवल neck extension and oxygen is good and then referral, but at tertiary we have to जहाँ आपको इंडिविजुअल इंट्यूबेशन मिलती है आप करें. सो गुड. अगला हम करते हैं. घड़ी मेरी खड़ी कर दी इन्होंने. चलिए आगे जी. इमीडिएट ट्रीटमेंट आपका BHU लेवल पर क्या होगा? BHU लेवल पर सबसे पहला ट्रीटमेंट जी बेटे आप बताएं. शाबाश. वेरी गुड, वेरी गुड. क्लैप कर दें फिर. अच्छा अच्छा, यहाँ मुझे बताएं कि अगर हम इसको CPAP देते हैं तो क्या अच्छा नहीं है? अगर CPAP हमारे पास अवेलेबल है, आप ही. व्हाई नॉट CPAP? मैडम जब नेक पोजीशन ही ठीक नहीं होगी तो फिर ऑक्सीजन जा ही नहीं सकेगी. जो CPAP है ना, इट इज फॉर इंटरनल पैथोलॉजी. लंग्स की पैथोलॉजी है ना, नमूनिया है, उस वक्त CPAP काम करेगा. एक्सटर्नल पैथोलॉजी में जो कंप्रेस कर रही है ना, उसमें CPAP नहीं. ठीक है. तो टेक होम मैसेज क्या है कि मैटरनल ग्रेव डिजीज कैन प्रेजेंट विद बोथ हाइपो एंड हाइपोथायराइडिज्म. दोनों के साथ प्रेजेंट कर सकती है ग्रेव डिजीज. If newborn with goiter has tachycardia, respiratory distress, always thinks of grave disease in mother. ये एक साथ में डिफरेंशियल गले में अपने जहन में बना लो. न्यूट्रल सिम्टम में अपीयर एट बर्थ और आफ्टर. ये न्यूट्रल सिम्टम्स है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि फौरन अपीयर हो जाए. ये देर से भी हो सकते हैं और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ भी हो सकते हैं. और क्योंकि मैटरनल ड्रग का विड्रॉल होता है. Thank you very much, audience, for your active participation. Now, I will be doing a scenario with you. याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बोलने के मार्क्स ही मार्क्स.
है ये? 26 साल की खातून है, ग्रेविडा टू पैरा 1, स्पॉन्टेनियसली कंसीव किया है, 7 वीक्स ऑफ gestation पे आई है. She is well with no history of diabetes, hypertension, any other chronic illness. But her first boy died at 7th day of life due to vomiting, dehydration, shock, for whom no diagnosis or genetic testing is available. क्या जहन में आता है? जी बट ठीक है, आज हम एंडो से बाहर भी अब सोच लें ना. जी बिल्कुल, बताइए. ये बच्चा है छोटा सा. एग्जैक्टली आई एम. सो व्हाट इज योर सस्पिशन? आपने कहा IEM, सेप्सिस किसने कहा? सो सेप्सिस, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन कॉमनली सेप्सिस में वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, शॉक के साथ बच्चे आते हैं, एंड इट इज मोर कॉमन देन CAH and inborn error of metabolism. What other causes you will consider? Meningitis. So sepsis ही meningitis, inborn error of metabolism, CAH as we said. क्या कोई अनोमली है कि ये ऐसे आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है. ठीक है, ये था. तो क्या डायग्नोसिस बना? CAH. So what should we discuss with the parents? Quickly कोई बता दे. अच्छा आप बता दो. पेरेंट्स के साथ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, कोई भी या फिर प्रीवियस सिबलिंग टेस्ट हिस्ट्री हो सकती है, री एग्जामिनेशन उसका, और बाकी फर्दर उसके साथ मैनेजमेंट जो भी होती है उसकी वो डिस्कस करेंगे. सिबलिंग डेथ के अलावा उसमें वॉमिटिंग, कोई कजन मैरिज, कजन या ठीक है, और बिकॉज जेनेटिक हिस्ट्री. और ये 7 वीक्स पे आई है, अभी बहुत टाइम पड़ा. क्या इसके साथ हम 7 वीक्स पे प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस की बात कर सकते हैं? ये थोड़ी मुश्किल है, लेकिन तो PCR भी ऐसी 7 वीक्स तो हो चुके हैं. सो फ्यूचर प्रेगनेंसी में हो सकती है, इसमें तो नहीं हो सकती है. तो हमने क्या डिस्कस करना है? चलें, लेट्स मूव ऑन. हम हिस्ट्री देखेंगे. हिस्ट्री में जैसे बताया आपको, कजन मैरिज है, सिर्फ डेथ है, और कोई जेनिटल एम्बिग्विटी है, या यही सिम्टम्स के साथ एक्सपायरीज होती रही है, तो ये हम उनसे डिस्कस करेंगे. दूसरा, हम प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस इस केस में नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कंसेप्शन हो सकती है, और उन्हें गाइड करेंगे कि हमारे पास एक सीरियस सैम्पलिंग एक मोडालिटी है जिसमें हम कुछ लेंगे 10 से 12 हफ्ते पे टेस्ट, और उसको चेक करेंगे. उससे हमें पता लग जाएगा कि बच्चा है या बच्ची है, क्या वो इसको से सफर कर रहा है डिजीज से या नहीं, और आगे कैसे करना है. और क्या करेंगे? एंटीनेटल काउंसलिंग किस चीज की कहना चाह रहे हैं? ये तो हो चुकी है ना, कि उसको ड्रग भी स्टार्ट करानी है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? माँ का क्या क्या कुछ मॉनिटर करना पड़ेगा, वेट मॉनिटर, साइकोसिस हो सकता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, और ड्रग देनी पड़ेगी कब से कब तक. रिस्क ऑफ क्लासिकल CAH क्या है? एक क्लासिकल केस में कितने % चांसेस है होने के? शाबाश. So it is an autosomal recessive condition. There are 25% chances, and out of that 12.5% chances of having a female, or which would take an advantage from that treatment. So, what antenatal maternal treatment should be offered and when it should be started? कौन सा ट्रीटमेंट देना है और कब स्टार्ट करना है? स्टीरॉइड देते हैं, तो ये भी अब कंट्रोवर्शियल हो चुका है, लेकिन स्टिल वी कैन गिव डेक्सामेथासोन 20 माइक्रोग्राम पर kg पर डे. प्री प्रेगनेंसी वेट है ये, ठीक है, और ये 7 to 9 वीक्स में हम स्टार्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि अभी जेनिटल्स जो हैं वो नहीं बने होते, और
हैं, डिफरेंशिएशन उनकी स्टार्ट हो जाती है, तो हमने यही इसको रोक लेना। तो व्हेन टू स्टॉप ट्रीटमेंट, कौन बताएगा? ये जरा मुश्किल हो जाता है ना। एग्जैक्टली सेक्स ऑफ द बेबी हमने देख ली, या हमने सीवीएस किया था अनअफेक्टेड फीचर्स का, या फिर बच्चा जो है क्या हुआ 36 वीक्स तक हमने लेके जाना है, 36 वीक्स भी रोकना है। ठीक है, इसकी आगे क्वेश्चन भी आ रहा है। सो अनअफेक्टेड फीमेल आ गई हमारे पास, हमने सीवीएस किया, या फिर मेल फीचर्स का। अब हाउ लॉन्ग टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट बता दिया मैंने अभी, कितनी देर? 36 वीक्स पे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर वो ज्यादा एंड्रोजन्स हुए भी तो वो क्या विरलाइजेशन नहीं करेंगे। व्हेन टू डिलीवर, वेयर टू डिलीवर। अब समझेंगे एक बच्ची थी, ठीक है, और ये सफर कर रही थी और इसको डेक्सामेथासोन चल रहा था। सो व्हेन टू डिलीवर, कब डिलीवर करेंगे? सॉरी, हम टर्म तक जाएंगे और हम सिर्फ ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन की वजह से उसको जल्दी या लेट करेंगे। ठीक है जी, और कहाँ डिलीवर करें? एक्सीलेंट, प्रेफरेबली टर्शियरी केयर, लेकिन अगर समहाउ वो स्पॉन्टेनियस लेवल में जाके प्राइमरी डिलीवर, वी कैन चेंज फिनोटाइप बिफोर बर्थ विद एंटीसिपेशन एंड टाइमली ट्रीटमेंट। डू यू एग्री? ये सम ऑफ द डिसऑर्डर है कि आपने पहले ही फिनोटाइप बदल दी बच्चे की टाइमली ट्रीटमेंट देके, और उसे एम्बिगुअस होने से बचा लिया, जो उसके लिए एक सारी जिंदगी का प्रॉब्लम था। Now I invite Dr. Huma, who is a clinical fellow neonatology in Children's Hospital Lahore. Now we will discuss clinical scenario. There is a woman, 36 years old, Gravida 2, Para 1, presented at 16 weeks of gestation for antenatal checkup. Her BMI is 30 kg per meter square, which is increased. Her previous pregnancy was uncomplicated with no prior history of diabetes. However, she has positive family history of diabetes. Now, how will you screen this patient for gestational diabetes? Oral glucose tolerance test we will do as the patient is presenting in the second trimester. We want to look for gestational diabetes. If the patient would have presented in the first trimester, then we will check fasting blood sugar level, HbA1c for type 1 and type 2 diabetes, diabetes in pregnancy. Now this patient has the two risk factors, increased BMI and a family history of diabetes. We will have to look for gestational diabetes. We will perform oral glucose tolerance test. How will we perform oral glucose tolerance test? फास्टिंग भी करेंगे ना, पहले फास्टिंग हम करेंगे 8 to 10 आवर्स की, फिर हम उसको 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे, फिर फास्टिंग 1 आवर एंड 2 आवर्स पर हम उसकी DSR चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा इसकी इंटरप्रिटेशन भी बता दें। इंटरप्रिटेशन कैसे इंटरप्रेट करेंगे? क्या हमारे पास रीडिंग्स आए हैं तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे, और हाँ जी, हाँ जी फिर उसके बाद 183, 180 और 153, इसमें से अगर एक भी रीडिंग हमारे पास ज़्यादा आ जाएगी तो हम उसको GDM लेबल करेंगे, उसको डायग्नोस कर देंगे। What to do if normal OGTT? अगर हमारे पास नॉर्मल आ जाए फिर हम क्या करेंगे? Anyone? रिपीट करेंगे 24 to, रिपीट करेंगे हम इसको 24 to 48, 24 to 28 वीक्स पर हम इसको रिपीट करेंगे OGTT को। ठीक, अगर नॉर्मल होगा तो हम उसको रिपीट करेंगे। नहीं, पहले तो हमने तरीका बताया था ना कि OGTT हमने करना कैसे है, वो और चीज़ थी, वो आर्ट्स थे। ये यहाँ पे अब बात हो रही है कि अगर हमारे पास OGTT नॉर्मल आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर अभी भी रिस्क है तो फिर हमें एडवांस प्रेगनेंसी में हम थोड़ा सा आगे लेके जाके रिपीट करेंगे कि अभी भी रिस्क है। अच्छा, if GDM is diagnosed, how will you monitor this patient for glycemic control?
सेल्फ मॉनिटरिंग हम एडवाइस करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए कि खुद ही वो चेक करे। और हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट हमारा क्या होगा ग्लाइसीमिया का, 9 fasting should be less than 95 and 2 hour postpartum should be less than 120। और हम इसकी लॉग बुक पर हम इसको लिखवा लेंगे और लॉग बुक को हम ईच विजिट पे चेक करेंगे। हाउ फ्रीक्वेंटली एंटीनेटल विजिट्स बी प्लान्ड, मोर देन इट, यस, उससे ज़्यादा। ठीक है, मोर फ्रीक्वेंटली भी हम 2 to 4 वीक करेंगे, 28 वीक्स तक, फिर एवरी सेकेंड वीक, फिर वीकली thereafter। ठीक है। What maternal parameters should be monitored at each visit? Blood pressure, और हम क्या देखेंगे, उसका यूरिन एग्जामिनेशन करवाएंगे प्रोटीन्स के लिए, नेफ्रोपैथी के लिए, और कीटोन्स देख लेंगे हम उसके। और एक चीज़ और भी करेंगे, हम उसकी लॉग बुक देखेंगे, उसमें अगर इंसुलिन के ऊपर पेशेंट है तो हाइपोग्लाइसीमिया क्योंकि एपिसोड तो नहीं आ रही, ये हम करवाएंगे, देखेंगे। अच्छा, इसमें आंसर आ गया। अच्छा, व्हाट फीटल सर्वेलेंस इज रिकमेंडेड इन दिस पेशेंट, तो इसमें हम एनॉमली स्कैन करवाएंगे और 4 वीकली फिर हम ग्रोथ स्कैन करवाएंगे, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, और 39 to 37 वीक पर हम वीकली करवाएंगे सीटीजी और बायोफिजिकल प्रोफाइल के साथ। हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हाँ डाइट मैनेज करेंगे, हाँ जी। ठीक, 30 मिनट्स। और इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वेट मैनेजमेंट 20 मिनट्स की, जैसे मैडम ने बताया, कैफीन को हम लिमिट करेंगे, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करेंगे। हाँ जी। और ये जैसे मैडम ने बताया था कि हमने मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी करनी है, अनरिफाइंड जो है वो शुगर्स करेंगे। ठीक है, फार्माकोथेरेपी इसमें सिर्फ 20% में रिक्वायर्ड होगी, इंसुलिन सिर्फ 20% में देंगे। अगर इंसुलिन गोल्ड स्टैंडर्ड है, अगर उससे नहीं होगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज कर सकते हैं। व्हेन टू रेफर द पेशेंट टू टर्शियरी केयर, अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं मैनेज होगा, लाइफस्टाइल से तो इंसुलिन की जरूरत पड़ी है हमें, तो हम इसको रेफर करेंगे। उसमें मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है, पोर ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, शोल्डर डिस्टोशिया की हिस्ट्री है, या फिटल कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर हम उसको पॉलीहाइड्रोमियोसिस है, मैक्रोसोमिया है, तो हम इसको रेफर करेंगे। When will you plan delivery of the baby? Gestational diabetes वाले को मैडम ने बताया था कि हम डिलीवरी कब प्लान करेंगे। 38 to 39 पर रखेंगे इसको, हम टर्म नियर टर्म हम टर्म तक लेके जाएंगे इसको। हमें जल्दी नहीं होगी इसमें, जैसे टाइप 1 टाइप 2 में हमें जल्दी होगी 37 38 पर, तो हम 39 पे, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हम 38 पे भी कर देंगे। पोस्टमार्टम फॉलोअप क्या करेंगे, मदर के लिए हम उसकी मेडिकेशन उसकी स्टॉप कर देंगे जो हम अगर इंसुलिन दे रहे थे, और उसको हम बताएंगे कि इंक्रीज रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का इन फ्यूचर, तो उसका हम ओजीटीटी करवाएंगे 6 वीक्स पर, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस करेंगे। और